نور پہ تشریف فرما باوقار مقدس معزز علماء کرام، حفاظ کرام، شورائے اسلام، آج کے اس عظیم الشان جلسہ محبت میں تشریف فرما جملہ عشاقان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پورا مجمع بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد بارک حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ، دائماً ابداً ابدا۔ قابل مبارکباد ہیں اراکین جلسہ، جامعہ خواجہ غریب نواز کے جملہ ممبران، محبین، مقربین، اور حضرت مولانا شاہ نواز عالم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جن لوگوں نے مل کر اس عظیم الشان بزم محبت کا انعقاد کیا اور ہندوستان کے مشاہیر و ممتاز پیران اعظام، علماء کرام، شورائے اسلام کو مدعو کیا، بلایا، ہم اور آپ ان کی دعوت محبت پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں پر حاضر آئے۔ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ڈاکٹر اقبال نے پھر آگے کہا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ پھر آگے زمانے کو فکر دیا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، سبحان اللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا کہنے، تم خان بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، جی سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو، اللہ اللہ، زبانیں پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ جلسے پورے بھارت میں ہو رہے ہیں اور یہ تو مہانگری ہے، یہاں ہر روز کئی جلسے وجود میں آتے ہیں، جلسے ہر روز کامیاب بھی ہوتے ہیں،
لیکن کامیابی تب ہے جب جلسے کامیاب ہوں یا نہ ہوں لیکن سننے والے کامیاب ہو جائیں. بے شک سبحان اللہ. اس قوم کا کامیاب ہونا ضروری ہے. جی سماج میں عزت سب کو چاہیے، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، مزدور ہو، امیر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کالج کا اسٹوڈنٹ ہو، مدرسے کا طالب علم ہو، مسجد کا امام ہو، مقتدی ہو، خانقاہ کا پیر ہو یا مرید ہو. جہاں عزت نہیں ملتی وہاں انسان نظر نہیں آتا. مگر عزت ملے گی کیسے؟ سماج میں وقار ملے گا کیسے؟ آخر عزت پانے کی راہ کیا ہے؟ سماج میں عزت تو سب کو چاہیے، تو قرآن کہتا ہے کہ عزت کی صرف ایک راہ ہے، اوت العلم درجات. جو علم حاصل کرے گا، شکشا گرہن کرے گا، تعلیم یافتہ بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جو بھی تعلیم یافتہ ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، ایجوکیٹڈ ہوگا، سماج میں ہر انسان اپنے علم کے مطابق عزت پاتا ہے. ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق، انجینئر اپنے علم کے مطابق، پروفیسر اپنے علم کے مطابق، سائنٹسٹ اپنے علم کے مطابق، عالم دین اپنے علم کے مطابق، حافظ قرآن اپنے علم کے مطابق. ایسا نہیں ہوتا کہ میٹرک پاس بچے کو بی اے کے برابر عزت مل جائے، بی اے پاس کرنے والے کو ایم اے کے برابر عزت مل جائے. ہر انسان اپنے علم کے مطابق عزت پاتا ہے. قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تم کیا سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل یہ دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے علم والوں کے رتبے کو بڑھا دیا ہے. ڈاکٹر جوہر میاں شفیع آبادی کا دو شعر مجھے یاد آتا ہے کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اور خود رب کائنات نے روشن کیا جسے پھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. پھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. آج تعجب کی بات ہے جس سماج میں ہم جیوت اور زندہ ہیں، سب سے پہلے دنیا میں جس نے علم کا نعرہ بلند کیا اور کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. آج وہی قوم تعلیم میں پسماندہ ہے، آج وہی قوم تعلیم میں پیچھے ہے. آج زمانہ ہم پہ حملہ آور ہے، لیکن ہمیں جہاں ہونا ہے شاید ہم وہاں پہ نظر نہیں آتے. ہماری تعداد وہاں پہ نہیں ہوتی، ہماری پہنچ وہاں پہ نہیں ہوتی. قابل مبارکباد ہے آپ حضرات کہ دن بھر ڈیوٹی کرنے کے باوجود بھی آپ اس بزم محبت میں شریک ہو گئے. کوئی اپنی بستی چھوڑ کر، کوئی اپنا گاؤں چھوڑ کر، کوئی اپنا پردیش چھوڑ کر، کوئی اپنا خاندان چھوڑ کر، کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، ہر انسان روزی روٹی کی فکر میں یہاں تک پہنچا ہے. ہم لوگوں کے بھی آنے کا مقصد ہے قوم کی اصلاح ہو، زمانے میں انقلاب آئے. لیکن سلطان رضا ایک بات کہنا چاہے گا، میری قوم کے لوگوں یاد رکھنا، آج زمانہ جہاں سے ہم پر حملہ آور ہے شاید ہم وہاں پہنچنے کی کوشش میں نہیں ہے. یاد رکھیے گا وہاں پہنچنے کی صرف ایک راہ ہے اور اس راہ کا نام ہے علم. آج ضرورت ہے الحمدللہ ہماری قوم کے پاس تعلیم ہو، یہ قوم ہر حال میں تعلیم یافتہ بنے، پیچھے نہ رہے. آپ صحابہ کی زندگی کو یاد کریں. مسجد نبوی شریف میں جائیں گے تو صفہ جیسا چبوترا پہلے ملے گا، سرکار کا منبر و محراب بعد میں ملے گا. آپ جب زندگی آپ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے جنہوں نے بھوکے پیاسے رہ کر علم دین مصطفیٰ کو ہم تک پہنچانے کا کام کیا، وہ زمانہ بڑا ترقی یافتہ نہیں تھا. قلم لکھنے کے لیے صحابہ کے پاس قلم نہیں تھا، کاپی کا وجود نہیں تھا، پڑھنے
पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, फिर भी सहाबा भूखे रहकर खजूर की छालों पर लिखकर, दरख्त की टहनियों पे लिखकर, पत्थरों पे लिखकर सहाबा ने पूरा दीन हम तक पहुंचाया है, पूरा कुरान हम तक पहुंचाया है, हदीसें हम तक पहुंचाई है। लेकिन आप जरा सा सोचे, आज हमारे पास दुनियावी तालीम के लिए भी बेहतरीन कॉलेज मौजूद है, अच्छी यूनिवर्सिटियां मौजूद है, मदारिस में हमारे पास दीनी तालीम के लिए अच्छी दरसगाहें मौजूद है, मगर क्या वजह है? हम गौसे आजम के गुलाम हैं मगर तालीम में हम पीछे हैं। हम आला हजरत इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। अल्लाह ने जिन्हें इस जमाने में 100 से जायद उलूम अता किए, हम उनके मानने वाले हैं, मगर आज हम तालीम के मैदान में पीछे हैं। हम उस्ताजुश शरिया के मानने वाले हैं, जिन्हें जब कहा गया, किसी ने इंग्लिश में सवाल किया तो इंग्लिश में जवाब दे दिया, अरबी में सवाल आया अरबी में जवाब दे दिया, हिंदी में किसी ने सवाल किया हिंदी में जवाब दे दिया, उर्दू में किसी ने सवाल किया उर्दू में जवाब दे दिया। सवाल ये उठता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखना, आज आपको ये देखना होगा हमें कहां पे किस तालीम की जरूरत है। इस्लाम में तालीम हासिल करना फर्ज है, मगर जो तालीम फर्ज है इससे मुराद वो तालीम है जिस तालीम का मोहताज एक डॉक्टर भी है, एक इंजीनियर भी है, एक प्रोफेसर भी है, एक राइटर भी है, एक साइंटिस्ट भी है। आप कहेंगे मौलाना उस तालीम से मुराद दीने मुस्तफा की तालीम है। याद रखिएगा, एक इंसान डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, उसके पास मैट्रिक की डिग्रियां हो, इंटर की डिग्रियां हो, बीए की डिग्रियां हो, मगर इस बात की गारंटी नहीं है कि जिसके पास डिग्रियां हैं वो समाज का एक अच्छा इंसान भी हो, वो समाज का एक अच्छा व्यक्ति भी हो, उसे जिंदगी जीने का शऊर भी मालूम हो, उसे जिंदगी जीने का तरीका भी मालूम हो। तभी तो आपने सुना होगा, एक डॉक्टर है मगर शराब पीने में मस्त है, एक इंजीनियर है मगर रिश्वत लेने में मस्त है, एक जज है मगर साहब सारे कानून को बलाए ताक रखकर फैसला सुना देता है। लोग रिश्वत लेने में मस्त है। एक इंसान बहुत पढ़ा लिखा है मगर जहेज के मामले में साहब अपने आप को रोक नहीं पाता है, जानता है जहेज मांगना हराम मगर फिर भी मांग रहा है। समाज में ये बुराइयां जो आम है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, हमारे पास डिग्रियां बहुत है, लेकिन उन डिग्रियों के बावजूद लाखों बच्चे हर साल मैट्रिक पास करते हैं मगर गांव में वो इनकलाब नहीं आता। करोड़ों बच्चे इंटर पास करते हैं मगर बस्ती में वो इनकलाब नहीं आता। लाखों बच्चे बीए पास करते हैं मगर गांव और खानदान में वो इनकलाब नहीं आता। मगर आपने देखा होगा, एक बच्चा मदरसे से फारिग होकर आता है, पूरी बस्ती में इनकलाब ला देता है, पूरे गांव में इनकलाब ला देता है, पूरे इलाके में इनकलाब ला देता है। आपने देखा होगा साहब, कई मामले में कोर्ट ने फैसले सुनाए, बातें बहुत हुई साहब, अच्छी तंजीमें पीछे रह गई मगर रजा एकेडमी ने काम किया, उलमा की तंजीमें आगे बढ़ी। आपने जगह जगह देखा होगा। यही वजह है मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखिएगा, जिंदगी में डॉक्टर उधर भी है, डॉक्टर इधर भी है, इंजीनियर उधर भी है, इंजीनियर इधर भी है, प्रोफेसर उधर भी है, प्रोफेसर इधर भी है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ डिग्रियों वाली तालीम से इंसान समाज का बावकार इंसान नहीं बन सकता। हाँ, अगर उसकी जिंदगी में मैट्रिक की डिग्रियों के साथ मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की तालीम आ जाए, डॉक्टर होने के साथ आमेना के लाल का किरदार आ जाए, इंजीनियर प्रोफेसर होने के साथ सहाबा की सीरत उसकी जिंदगी में आ जाए, वो इंसान डॉक्टर भी होगा और गरीबों की मदद करने वाला भी होगा, इंजीनियर भी होगा, समाज का एक समाज के लिए अच्छी फिक्र और अच्छी ज़हनियत रखने वाला भी होगा। फिर उसका नारा ये नहीं होगा माई लाइफ माई चॉइस, जैसे आज नौजवान बातें कर रहे हैं। मौलाना साहब, अजीब बात है, क्या हमारी कोई पर्सनालिटी और जिंदगी नहीं है? माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। आज कौम की पढ़ी लिखी बेटियां कह
रही है। माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मैंने कहा बेशक हक है, हर इंसान अपनी मर्जी से जिए, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो मर्जी क्या मर्जी है जिस मर्जी से खुदा राजी ना हो? वो मर्जी क्या मर्जी है जिस मर्जी से मुस्तफा राजी ना हो? क्या किसी को कोई नौजवान कहे मौलाना हम अपनी मर्जी से शराब पीना चाहते हैं, क्या आप इजाजत दे देंगे? क्या कोई नौजवान कहना चाहे मैं अपनी मर्जी से जुआ खेलना चाहता हूँ, क्या आप उसकी इजाजत दे देंगे? आज बड़ा अफसोस है, मर्द औरत बनने के लिए तैयार है, औरत मर्द बनने के लिए बेचैन है। पहले औरतें कान में बाली पहनती थी, अब मर्द कान में 4-4 बालियां पहनकर घूम रहे हैं। पहले औरतें चूड़ियां पहनती थी, अब मर्द चूड़ियां पहन के घूम रहे हैं। पहले औरतों के बाल बड़े होते थे, अब मर्द बाल बढ़ा करके घूम रहे हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा कि तुम अपनी मर्जी से जीना चाहते हो, याद रखना तुमने ख्वाहिशाते नफ्स, तुमने अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की है, फिर तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। कामयाबी तो उसके लिए है, नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। याद रखना जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से रोक लिया, जन्नतुल फिरदौस उसका ठिकाना है। ऐ समाज के हसीनो जमील नौजवान लड़के और लड़कियों, अल्लाह ने तुझे हुस्नो जमाल दिया है, ये खूबसूरत आंखें दी है, ये खूबसूरत पर्सनालिटी दी है, तुम उस मालिक को मौला की बारगाह में क्यों नहीं लौटते? ए मौला, तूने आंखें दी है, तूने जिंदगी दी है, तूने सांसें दी है, तूने पर्सनालिटी दी है, तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। ए मौला, तूने हमें अक्ल से नवाजा है, हम अपनी मर्जी से नहीं, हम तेरी मर्जी से जीना चाहते हैं। बता तेरी मर्जी क्या है? तो अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तेरी हो और सीरत मुस्तफा जाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहिब किबला। आंखें तेरी हो, हया रसूलुल्लाह की हो, बेटी तेरी हो, सीरत रसूलुल्लाह की बेटी की हो, औलादे तेरी हो और सीरत हसनैन करीमैन की है ना, तब जाकर इस जिंदगी में इनकलाब। जब इंसान अपनी मर्जी से जीता है, जुआरी बन जाता है, शराबी बन जाता है, जानी बन जाता है, पापी बन जाता है। इंसान जब अपनी मर्जी से जीता है, साहब उसके कदम डगमगाने लगते हैं, इंसान नफसानी ख्वाहिशात का पैरोकार बन जाता है। लेकिन जब वो इंसान नबी की मर्जी से जीता है, मस्जिद का नमाजी वो होता है, कुरान की तिलावत करने वाला वो होता है, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर होकर भी नबी की मोहब्बत उसके सीने में होती है। कमाता है तो कमाता वो है, मगर जब माले ज़कात निकालता है तो उसकी कमाई से करोड़ों गरीबों के घरों में चिराग जल जाते हैं। जाहिर सी बात है, याद रखिएगा, जब इंसान खुदा की मर्जी से जीता है, सरकार की सीरत के मुताबिक जीता है, तो माँ भी खुशहाल होती है, बीवी भी खुशहाल होती है, बच्चे भी खुशहाल होते हैं, बेटियां भी खुशहाल होती हैं। लेकिन शर्त यह है, इंसान नबी की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। नबी ने कहा, याद रखिएगा, हर मुसलमान मर्द औरत के लिए इतनी तालीम की जरूरत है, वो जाने अल्लाह एक है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हमारा अकीदा क्या है? मैं हमेशा कहता हूँ, बरेली शरीफ जाने वालों, जब बरेली शरीफ जाओ ना, तो वहां से सुरमा लेकर के ना आओ, वहां से तुम सदरी और सिरवानी लेकर ना आओ, वहां से तुम अमामा और टोपियां लेकर ना आओ। अरे बरेली शरीफ से आओ तो बरेली के अहमद रजा का अकीदा लेकर के आओ, बरेली के अहमद रजा का इश्क लेकर के आओ, बरेली के अहमद रजा के ओलूम का कुछ हिस्सा लेकर के आओ। आज हमारी कौम कहां पे ठहर गई? आज हमारे नौजवान मैट्रिक पास करके रुक जाते हैं, इंटर पास करके रुक जाते हैं, बीए पास करके रुक जाते हैं, तालीम के मामले में आप कोशिश नहीं करते। हमारे मदारिस का भी हाल यही है, बच्चे उला सानिया सालिसा पास करके रुक जाते हैं, बच्चे हिफ्ज करके सिर्फ बैक हो जाते हैं या क़िरात करके बैक हो जाते हैं। हम तालीम के मामले में कोशिश नहीं करते। आपने देखा होगा, हम लोग गौसे आजम का लंगर खाने वाले हैं,
کتنے لوگ غوث اعظم کا لنگر کھانے والے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو کیا کہنے، سارے لوگ اسٹیج سے لے کر نیچے تک ماشاءاللہ سب غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عشق دیا. یاد رکھیے گا عقیدہ اور ہے اور عشق اور ہے. آج کل لوگ ہر بات کو عقیدہ بول دیتے ہیں، اس لیے اس بات کا خیال رہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عشق دیا. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. مگر ہماری قوم کے نوجوانوں نے صرف ختم قادریہ کو جانا ہے. ہماری قوم کے نوجوانوں نے صرف غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا یہ جانا ہے. ہماری قوم کے نوجوانوں نے غوث اعظم نے مرغے کو زندہ کر دیا صرف یہ جانا ہے. مگر ہماری قوم کے نوجوان یہ بھول گئے کہ غوث اعظم وقت کے سب سے بڑے عالم کیسے بنے، سب سے بڑے مفتی کیسے بنے. انہوں نے تعلیم کی راہ میں کتنی مشقتیں اٹھائی، انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنا پریشرم کیا. آج تھوڑی سی غریبی آ گئی، ہمارے بچے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا تو آج آپ کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر سماج میں کسی سے پوچھا جائے مولانا صاحب اس کا نام کیا ہے، ہر بچہ کہے گا مولانا اس کا نام موبائل ہے. اگر میں پوچھوں رکھنا کیسا ہے، جو لوگ اس سے دکھی ہوں گے وہ کہیں گے یہ بالکل رکھنا ٹھیک نہیں ہے. جو لوگ اس سے سکھی ہوں گے کہیں گے مولانا اس سے تو دال روٹی چل رہی ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. یاد رکھیے گا بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کل لامرئ ما نوى. اعمال کے دار و مدار نیت پر ہے. ایک نوجوان ممبئی کا اٹھا ہے اور وہ موبائل سینٹر پر گیا ہے. کہا میں سعودی عرب جا رہا ہوں، کمانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک موبائل اچھا سا لے لیتا ہوں. جب بدیش چلا جاؤں گا ماں سے گفتگو اس سے کروں گا، بیوی بچوں کی خبر و خیریت اس سے پوچھوں گا. میں اس موبائل پہ ذریعہ کہاں کہاں قرآن شریف لے کر جاؤں گا، اسی میں کنز الایمان بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھوں گا، اسی میں ذرا سے اپنے قرائے اعظام کی قرات بھی سن لوں گا، اسی میں ذرا سرکار کی نعت بھی سن لوں گا. اب صاحب چونکہ نیت درست ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں ماں سے گفتگو کروں گا، بیوی بچے رشتہ داروں کی خبر و خیریت لوں گا، میں اس میں قرآن کی تلاوت سنوں گا بھی اور کروں گا بھی. اس کی نیت یہ ہے. اب صاحب اس کا موبائل خریدنا ثواب، موبائل رکھنا ثواب، موبائل پہ ماں سے گفتگو کرنا ثواب، موبائل پہ بیوی بچوں کی خبر و خیریت لینا ثواب. مگر ایک نوجوان کا ذہن بدل گیا، ذہن میں آوارگی آ گئی. وہ موبائل سینٹر اس لیے پہنچا موبائل خریدوں گا، ناچ گانے دیکھوں گا، فلم موویز دیکھوں گا، IPL میں سٹا لگاؤں گا، ڈریم 11 میں ٹیم بنا کر کے میں اس میں جوا کھیلوں گا. ظاہر سی بات ہے اس کے ذریعہ میں صاحب غلط لڑکیوں سے چاٹنگ اور باتیں کروں گا تو نیت میں فساد ہے. اب اس کا موبائل خریدنا بھی گناہ، اس کا موبائل رکھنا بھی گناہ، چونکہ اس کی نیت میں گڑبڑی آ گئی. اے میری قوم کا نوجوان، تو اپنی زندگی کی نیت کو پاکیزہ بنا لے، خدا تیری زندگی کو پاکیزہ بنا دے گا، پاکیزہ بنا دے گا. شرط یہ ہے ہماری نیت میں پاکیزگی آ جائے. انسان کو نیت کا ثواب ملتا ہے. سرکار بڑے پیر دستگیر کی 18 سال کی عمر ہے، علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے ماں سے اجازت لیتے ہیں. کتنے سال کی عمر ہے؟ 18 سال. ذرا پورا مجمع پیچھے سے بول دیجئے کتنے سال کی عمر ہے؟ 18 سال. ہمارے یہاں عموماً 18 سال کے بعد بچے اب سوچتے ہیں کہ پڑھائی سے ریٹائرمنٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب پڑھائی چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. ارے مولانا صاحب اب کمانے کا وقت آ گیا ہے. سرکار بڑے پیر دستگیر 18 سال کی عمر میں جیلان سے رخصت ہوئے اور بغداد علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑے. ماں نے جو پیسے دیے تھے راستے میں ختم ہو گئے. وہ ماں بھی کیا ماں تھی جس ماں نے کہا تھا عبد القادر جا جہاں جانا ہے جا، یہ ماں جو دے رہی ہے لے لے، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا. آج ماں کو بچوں سے گفتگو کے لیے کہاں فرصت ہے، یا بچوں کو ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے یا ماں باپ کی خبر و خیریت لینے کی کہاں فرصت ہے. سرکار بڑے پیر دستگیر چلے ہیں. ماں کے اس بات پہ عمل کا اثر یہ ہوا کہ کتنے لوگ راستے میں صاحب تائب ہوئے اور سرکار غوث اعظم
आजम के हाथों पे दाखिले इस्लाम हो गए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं, जो ही मैं बगदाद पहुंचा महीनों दिन पढ़ता रहा, मगर मुझे खाना नसीब ना हुआ। मैं उस्ताद से सबक लेता और मस्जिद को चला जाता, जाकर वहां सबक याद करता। भूख की शिद्दत जब बढ़ जाती तो मैं मस्जिद की जमीन पर लेट जाता और पढ़ता, फइन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। ऐ मेरी कौम का नौजवानों सुनो, 18 साल की उम्र है बड़े पीर दस्तगीर की, महीनों खाना नसीब नहीं हुआ, मगर तालीम हासिल करने के लिए भूखे हैं, मगर हर रोज उस्ताद की बारगाह में हाजिर है। प्यासे हैं मगर हर रोज तालीम हासिल कर रहे हैं। भूख की शिद्दत बढ़े तो जमीन पे लेट गए, खुदा की बारगाह में साहब अर्ज गुजार है, मालिको मौला मेरी परेशानी को आसानी में बदल दे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, एक रोज मैं फिक्र की सबक को अपने उस्ताद से पढ़कर बयाबान में आकर बैठकर याद कर रहा था। फिक्र के सबक को याद कर रहा था, गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और उठ करके तुम कुव्वते लायमूत के लिए कर्ज ले लो। कुव्वते लायमूत यानी इतनी ताकत तेरे जिस्म में आ जाए कि मौत वाक़े ना हो, इस कदर कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर अर्ज गुजार होते हैं, मालिको मौला अब्दुल कादिर के पास तो पहनने के लिए एक अच्छा जुब्बा भी नहीं है, फिर अब्दुल कादिर कर्ज लेगा तो अदा कहां से करेगा? रब्बे कदीर का इशारा होता है, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम है, अदा कर देना मेरा काम है, तू कर्ज तो ले ले। सरकार बड़े पीर दस्तगीर चले हैं, नानबाई की दुकान पर गए हैं। नानबाई भी खुदा वाला था, सलाम किया, कहा तुम मुझे कर्ज दोगे? उसके आंखों में आंसू आ गए, कहा सरकार मैं भी आपका खादिम और ये दुकान भी आपकी और आप कर्ज की बात कर रहे हैं। कहा ना मैं कर्ज लूंगा मगर एक शर्त पर। कहा हुजूर सारी शर्तें मंजूर है। कहा सुनो, रोजाना तुम मुझे 1.5 रोटियां कर्ज दे देना और याद रखना अगर अल्लाह ने जिंदगी वफा की और कुछ अता कर दिया तो मैं कर्ज वापस कर दूंगा, अगर मौत वाक़े हो गई तो तुम मुझे माफ कर देना। रोजाना 1.5 रोटियां कर्ज देना, आधी रोटी सुबह, आधी रोटी दोपहर और आधी रोटी रात में। आप मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आप बताओ ईमानदारी के साथ, ये बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी है जो पढ़ने के लिए 1.5 रोटियां कर्ज ले रहे हैं और हर रोज सुबह को, दोपहर और रात में आधी आधी रोटियां खाते और इल्म हासिल कर रहे हैं। आज कितने गौसे आजम के दीवाने हैं जो भूखे रह करके पढ़ना सीखते हैं, जिन्होंने गुरबती होते हुए भी जिन्होंने तालीम की राह को न छोड़ा हो। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, बताएं आप चाहे कॉलेज में पढ़ते हो, आप चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप चाहे मदारिस में पढ़ते हो, आज हमारी कौम थोड़ी सी गरीबी आ गई या माँ बाप की कमाई में थोड़ी सी कमी आ गई, बेटा इंटर में ताप है मगर तालीम छोड़कर भाग आता है, बेटा कोटा पढ़ रहा है या अच्छे कॉलेज में तैयारियां कर रहा है, माँ बाप की जिंदगी में थोड़ी सी गरीबी आ गई, हम तालीम छोड़ करके बैक हो जाते हैं। या मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे, साहब हम पता करते हैं सुबह को क्या मिलता है, दोपहर में क्या मिलता है, रात में क्या मिलता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, अगर हमने अपनी जिंदगी के यही मसाइल रखे तो आज हमारी जो पोजीशन है, मदारिस में सिर्फ 1% बच्चे पढ़ते हैं, उसे 1% को 100% में तब्दील कीजिए तो 1% बच्चे कामयाब होते हैं। 99% बच्चे बैक डोर से वापिस चले जाते हैं। जो बच्चे 99% कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, 75 से 80% हमारी कौम के बच्चे इंटर तक पढ़ते पढ़ते बैक हो जाते हैं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। मैं कहूंगा ऐ मेरी कौम के नौजवानों जागो, आज तुम्हें भी तहरीक में शामिल होने की जरूरत है। वो तुम्हारी तहरीक हो तालीमी बेदारी तहकीक, हम गौसे आजम के मिशन को जिंदा करें। सिर्फ उर्स का मकसद चादरें चढ़ाना नहीं है, सिर्फ उर्स का मकसद मेले लगाना नहीं है, उर्स का मकसद लंगर खाना नहीं है, उर्स का असल मकसद बुजुर्गों की सुन्नत को फिर से समाज में जिंदा करना है। इसलिए आज कौम का हर बच्चा ये वादा करके जाएगा, हम भूखे रहेंगे मगर
इंशाअल्लाह हम अपनी तालीम की इंतहा को पहुंचेंगे। हम बीए है तो बीएड करेंगे, हमने इंटर बीए किया है तो हम यूपीएससी बीपीएससी में बैठने की तैयारी करेंगे। हम मोबाइल चला करके सुबह तक के 10 बजे तक सोने वाला नहीं बनेंगे। हम मुंबई के सड़कों पे दौड़कर, बताओ हमारी कौम के नौजवानों, आपकी बिहार पुलिस में कितनी हिस्सेदारी है, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में कितनी हिस्सेदारी है, आपके मुंबई पुलिस में कितनी हिस्सेदारी है, कितने बच्चे आपके यूपीएससी और बीपीएससी ऐसी पास करके साहब बने हैं। आप मदारिस की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं मदारिस में ये नहीं होता वो नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में सारी बातें हो रही है। मैं तो कहूंगा इन अगर आपसे नहीं होता तो इन मदारिस को ही इतना मजबूत कीजिए कि साहब ये मदारिस ही काम करे। आप बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी देखिए, या बना आप चाहे अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी या भारत की जामिया, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे बहुत सारे मदरसे के फारिगीन बच्चे पढ़ते हुए भी मिलेंगे और हर बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए भी मिलेंगे। आप साहब देखें अब मामलात वो नहीं रह गए। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना आज तुम जिससे टकराने, आज तुम्हारा जिससे मामला है, अब वो दौर बम चलाने का नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा कि तुम बंदूक चलाओगे, वो दौर नहीं रहा कि तुम पत्थर चलाओगे, वो दौर नहीं रहा। कौन कहता है कि पत्थर चलाने वालों को मुसलमान कहा जाता है? अरे पत्थर खाकर ताइफ की मैदान में कुफारो मुशरिकीन को के लिए हिदायत की दुआ करने वाले मुस्तफा जाने रहमत को बानिए इस्लाम कहा जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। नबी ने ये किरदार दिया है। आज ये सोशल मीडिया का जमाना है साहब, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मैं रोना अपना रोता हूं तो हंस हंस के सुनते हैं। हमारे दिल की लगी उन्हें दिल लगी मालूम होती है। आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर इतना एजुकेशन होना चाहिए, हर कौम के बच्चे के अंदर ये जुनून होना चाहिए। हमें पढ़ लिख करके कुछ बनना है, आपकी कुछ मंजिल होनी चाहिए, वो चाहे तिजारत के एतबार से हो, वो चाहे नौकरी के एतबार से हो, वो चाहे एजुकेशन के एतबार से हो, आपको पहुंचना कहाँ है। और मैं अपने कौम के अमीरों से भी कहूंगा, सरमायादारों से भी कहूंगा, जब ये कौम ही जिंदा नहीं रहेगी तो आपकी बिल्डिंगों की हिफाजत कौन करेगा, आपकी दौलत की हिफाजत कौन करेगा, आपकी तिजारत की हिफाजत कौन करेगा। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, अपने अंदर इतनी क्वालिटी पैदा करो कि वर्दी भी तुम्हारे पास दी जाए और तुम्हारे हाथों में हथियार भी दिया जाए कि आप अपनी भी हिफाजत कीजिए और इस मुल्क की और मुल्क के लोगों की भी हिफाजत कीजिए। सुभान अल्लाह। अगर आप वहां पे जाएंगे तब ना, आप वहां पे पहुंचेंगे तब ना, आप अपने बच्चों के ज़हन में ये बात डालेंगे तब ना। अभी देखिए मेरी तकरीर हो रही है और बच्चा बेचारा बैठकर मोबाइल चला रहा है। आप देखिए अल्लाह, उस नौजवान को देखिए, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है, जलसा सुनने आए हैं, तकरीर सुनने आए हैं। अब सोचिए जरा सा, ये छोटा सा बच्चा आया है, अगर इसके ज़हन में आज अपना मुस्तकबिल नहीं है कि हमें मुस्तकबिल में क्या बनना है, तो फिर इसका मुस्तकबिल अंधेरे में है। ये जवान होकर क्या करेगा? हर नौजवान अपना मुस्तकबिल तय करे। हुजूर हाफिज मिल्लत का मिशन आपने नहीं पढ़ा तो उनके शागिर्दों से पूछिएगा। दरसगाह में तय करते थे मेरा कौन शागिर्द किस मिशन तक पहुंच सकता है। मुझे तो लगता है कॉलेज में पढ़ाने वाला हो या स्कूल में पढ़ाने वाला, हर टीचर अपने शागिर्द से ये वाकिफ होता है कि उसका शागिर्द किस मकाम तक पहुंचने वाला है। अगर माँ बाप उसके उस्ताद से मिलकर इस बात पे फैसला ले कि आप बताएं मेरा बच्चा किस मामले में कामयाब हो सकता है, तो एक उस्ताद सही रहनुमाई कर सकता है। अगर वो अकाउंटेंट में कामयाब है वहां लगा दो, तिजारत में ज़हन है वहां लगा दो, आप यूपीएससी बीपीएससी करना चाहता है वहां लगा दो। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, अभी साहब आपने देखा ये सोशल मीडिया का जमाना है, एक बच्ची ने पोस्ट किया कि साहब जब मैं अपने गांव से निकलती हूं तो मेरे गांव से लेकर 2 किलोमीटर तक 10 मदरसे भी हैं और मस्जिदें भी हैं, मगर एक ऐसा कोई दूध का दुकान नहीं है जहां पे बगैर पानी का दूध मिलता हो। साहब याद रखिएगा उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है दुकानदार तो है मगर उनकी जिंदगी में इस्लाम नहीं है। याद रखिएगा इंसान होना और है और जिंदगी
जिंदगी में इस्लाम होना और है। जिसकी जिंदगी में इस्लाम होगा उसकी जिंदगी में अदल उमर वाला होगा, सदाकत अबू बकर वाली होगी, सुजात हजरत सरकार मौलाए कायनात की होगी, सखावत हजरत उस्मान गनी की होगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, आज हमारे माँ बाप ने कितना इंतजाम किया। माँ सुबह को उठती है, लंच बनाती है तेरे लिए, सुबह को नींद कुर्बान करती है तेरे लिए। तेरा बाप दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझता, 12-12 घंटे मुंबई में ड्यूटी करता है ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख करके अच्छा बन जाए। हमारे ये उलमाए कराम जो इनकी उम्र बुढ़ापे को पहुंच गई, अपना घर बार छोड़कर मुंबई में पूरी जिंदगी गुजार दिए ताकि कौम का भी भला हो, हमारी औलादों की भी मुस्तकबिल बेहतर हो। मगर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम का नौजवान, तूने क्या किया? उस माँ का दिल तोड़ दिया, उस बाप के दिल को दुखा दिया। तुमने क्या किया अपने माँ बाप के साथ? मगर देख गौसे आजम को माँ ने भेजा था, बेटे को खाने की फिक्र नहीं थी, पीने की फिक्र नहीं थी। माँ मैं पढ़ के आऊंगा, 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ते रहे और पढ़कर बने तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों के इमाम बन गए, मुफस्सिर नहीं इमामुल मुफस्सिरीन बने, मुहद्दिस नहीं इमामुल मुहद्दिसीन बने। सरकार गौसे आजम कहते हैं कि उस जमाने में मैं 1000 उलूमो फनून को जानता था। याद रखिएगा, 1000 उलूमो फनून को, तभी तो फरमाते हैं सिर्फ वली नहीं बने, वलियों के सरदार बन गए। ऐलान किया मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर, तो बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद यूं अर्ज गुजार हुए, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फैजाने सरकार गौसुल आजम अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहिब किबला। बहुत उम्दा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या गौसे आजम ने नहीं कहा सेटेलाइट का जमाना नहीं था साहब, मोबाइल का जमाना नहीं था, कंप्यूटर का जमाना नहीं था, मगर गौसे आजम 1000 उलूमो फनून को जानते थे। कहते हैं मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे इंसान हथेली पे सरसों के दाने को देखता है। उनके इल्मी जलाल को देखकर बादशाह वक्त ने कहा, हुजूर आधी हुकूमत आपकी और आधी मेरी। क्या कहने, आधी हुकूमत आपकी। अगर इल्म हो तो दौलत की कमी होगी, हाथ उठाकर बोले दौलत की कमी होगी। इल्म हो तो नौकरी की कमी होगी, इल्म हो तो पैसे की कमी होगी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कितने नौजवान हैं, सिर्फ नौजवान जो आज के बाद भूखे भी रहेंगे मगर इंशाअल्लाह तालीम हासिल करेंगे, वो स्कूल के हो, कॉलेज को हो या मदरसे को। सिर्फ नौजवान हाथ उठाकर बताइए कितने नौजवान हैं, छोटे बच्चों से, है ना, जो पढ़ काम करने वाले वो नहीं। माशाअल्लाह। चलिए ये जितने 10-20 नौजवान आए हैं ना, अपनी जिंदगी का फैसला करो। आप याद रखिएगा, ये दौर वो नहीं रहा जिस दौर में अभी आप मुस्तकबिल में, आप जिस दौर में अभी सो रहे हैं। जागिए, बेदार होने की जरूरत है। अगर आप बेदार नहीं हुए ना, ये साहब वो तहरीकें चल रही हैं, आप मुर्दा कर दिए जाइएगा। आप अगर बेदार नहीं हुए, उन जगहों पे नहीं पहुंचे। इसलिए मैं अपनी कौम के अमीरों से भी कहूंगा, अगर आपके यहां कोई एमपी विधायक वोट मांगने के लिए आता है ना, तो आप उससे बिजली मत मांगो, आप उससे सड़क मत मांगो। ये 500,000 रुपए वोट देकर दलालों के साथ मिलकर वोट मत दो। आप उससे कहो आप हमारी भलाई के लिए हमारे मोहल्ले में एक एजुकेशन पॉइंट बना दीजिए। आप एक काम कीजिए, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे आर्मी में हो, फौज में जाएं, बीएसएफ में हो। हमारे बच्चों के लिए साहब एक आर्मी कोचिंग सेंटर खोलवा दीजिए। किसी नेता से बोलिए यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए हमारे लिए एक कोचिंग सेंटर का इंतजाम करा दीजिए। कौम के सरमायादारों और अमीरों से भी मैं कहूंगा, इन मदारिस को
मजबूत कीजिए। जो मदारिस आपको हुफाज देते हैं, कुर्रा देते हैं, साहब इन्हीं मदारिस में अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लगाइए। साहब अगर वहां बात नहीं बन पाती तो मैं इन उलमा से कहूंगा। अब साहब वक्त की आवाज तो यही है, क्योंकि हर इंसान का कमेंट यही होता है, मौलवी क्या कर रहा है, मौलवी सोया हुआ है, मौलवी कहां पर खोया हुआ है, ये मौलाना लोग कर क्या रहे हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा हमें जो करना था हम कर रहे हैं, अब हम क्या करें। जाहिर सी बात है आपको भी कुछ करना होगा। आप ईमानदारी से बताइए, आपने आलिमों की वो कदर नहीं की जो कदर होनी चाहिए। आप ईमानदारी से बताइए, अगर जिस्म बीमार हो तो अच्छा डॉक्टर तलाशते हैं कि नहीं तलाशते? जी बोलिए, अच्छा डॉक्टर तलाशते हैं ना, कि अच्छा डॉक्टर मिले, फी चाहे जितना लगे, 2000 फी लेता हो कोई बात नहीं, अच्छा डॉक्टर है नंबर लगा दो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जिस्म बीमार हो तो अच्छा डॉक्टर चाहिए, यहाँ पूरा समाज बीमार है, यहाँ पूरा माशरा बीमार है, आप मस्जिद में अच्छा आलिम या अच्छे आलिम की कदर क्यों नहीं करते? आलिमों को दीन के काम में लगाइए, लेकिन उसकी सूरत यही है। आप ईमानदारी से बताइए, डॉक्टर के पास जमीन की बात नहीं कर सकते, वकील के पास जिस्म के इलाज की बात नहीं कर सकते, मगर यहाँ आलिम साहब के पास आएंगे तो दीन की बात के अलावा सारी दुनिया की बात। जी इमाम साहब बेटी बीमार है, बीवी बीमार है, एक बार भी नहीं पूछेगा कि हम जो सजदा कर रहे हैं जरा देख लीजिए ठीक ठाक है कि नहीं है, ये नहीं पूछेंगे। हमारी तरह जुब्बा अमामा पहनकर इस फील्ड में एक नहीं 1 करोड़ तकरीरें हो जाए, मगर जब तक जो आपके यहाँ के उलमा हैं, अगर आपने इनका सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। हम कितनी बार बताएंगे, एक छोटी सी बात सुनिए। सब लोग मजार शरीफ पे चादरें चढ़ाते हैं, लेकिन आज मजारों पे चादरें बढ़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। अल्लाह, कितने बाप हैं जो कभी बेटी का लिबास चेक करते हो कि बेटी तेरा दुपट्टा शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है? अल्लाह। मगर हाजी अली जाना हो तो 100 बार चादर चेक करेगा। जी, चादर मोटी है कि नहीं है, मखमली है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं, इमाम साहब जरा चादर देखिएगा। मगर एक बार भी बेटी के सर का दुपट्टा ठीक है कि नहीं, बीवी के सर का दुपट्टा ठीक है कि नहीं। अब पूरी बीवियां बेपर्दा रहती हो और खूब मजारों पे चादरें चढ़े तो क्या फायदा। आला हजरत ने लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। बाकी 1 करोड़ चादरें मत चढ़ाओ। 1 करोड़ चादरें चढ़ाओगे तो चादर बेचने वालों की तादाद पैदा होगी। जी, उन्हीं पैसों को बचाओ और कौम के गरीब बच्चों की तालीम में उन पैसों को लगाओ, ताकि कौम के बच्चे पढ़ेंगे तो चादरों की भी हिफाजत होगी और बुजुर्गों के की चौखटों की भी हिफाजत होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम, जिंदाबाद। वाह। आप बताएं ईमानदारी से, इतने नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे नौजवानों के सरों पे टोपियां नहीं है, किसी ने आपको मना किया मत पहनिए नहीं तो गोली चला देंगे? अल्लाह। किस दिन टोपी पहनिएगा? जब पाबंदी लग जाएगी। क्या हुजूर मुहद्दिसे कबीर ने नहीं कहा कि मस्जिदों की हिफाजत का सबसे आसान तरीका यह है कि मस्जिदों में नमाजी बन जाइए? बोलिए, क्या बात। आए मेरी कौम का नौजवान, जागो। क्या तकरीर करूं मैं, क्या न करूं। सही। बहुत दिनों के बाद मुंबई आया, मेरी आपसे गुजारिश होगी, मैं आऊं ना आऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपकी मस्जिद का जो काबिल इमाम है उसे अपने घर हफ्ते में 1 दिन दावत देकर जरूर बुलाइए। वाह 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 वाह। मगर तावीज लिखवाने के लिए नहीं जी, फूंक फाक कराने के लिए नहीं, 100 खत्म का हदिया देने के लिए नहीं, दीन सीखने के लिए बुलाइए। बेशक बुलाइए, हजरत तशरीफ ले आइए। वाह वाह। घर की बेटी बहू पर्दे में हो जाओ,
बच्चों तुम आ जाओ हजरत ये चाय पीजिए, और आज हम लोगों को वजू करने का तरीका सिखा दें। हाय 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 हाय, क्या ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बस सिखा दीजिए। इमाम साहब से अब ये नहीं कि पूरा खानदान बुला लिया, नहीं, सीखिए, दुआ कराइए, औरतों को भी वजू के मसाइल सुन लीजिए। कहीं ऐसा नहीं कि आपकी बेटी नाखून पालिश लगाती हो और वजू ही नहीं होता हो। अल्लाह अकबर। अब देखिए ये सब तकरीर करने का वक्त रहा भी नहीं, टेंशन बहुत होता है जलसों में आने के बाद, तकरीर नहीं जमेगी तो फिर कोई बुलाएगा नहीं, अच्छा है ना। तो ये जमाना छोड़िए जी, कौम की भलाई इसी में है। इन आलिमों को बुलाइए, सिर्फ एक दिन में एक मसला खुद भी सीखिए, औरतों को भी सिखलवाइए। वाह वाह वाह। और हुजूर ये मुख्तसर सा नजराना कबूल कीजिए, दुआ कीजिए, फिर अगले संडे को याद कीजिएगा, इंशाअल्लाह इस फकीर की दावत याद रखिएगा। अगर आपने ये काम शुरू किया, साल में 10 बार बुलाए, तो कम से कम 10 दिन की बातें आपके बच्चे सीख जाएंगे। मुझे लगता है 10 जलसों पे ये 10 बातें भारी पड़ जाएंगी। और जब आपकी साहब कौम को बेदार करना हो, तो हमारे यहाँ एक से एक खतीब मुंबई में भी हैं और दिल्ली में भी हैं, जिसे बुलाना हो बुलाकर खिताब सुनिए। लेकिन आप इन आलिमों का इस्तेमाल कीजिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई, सर पे पतला दुपट्टा था। सैयदा ने उस दुपट्टे को लिया, फाड़ दिया और मोटा दुपट्टा ला करके डाल दिया। कहा याद रखना इस्लाम का दुपट्टा वो नहीं है, बल्कि इस्लाम का दुपट्टा वो है जिससे बाल की सियाही नजर नहीं आए। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, आज हमारी कौम के लिए ये मुश्किल वक्त नहीं आ गया। देहात से लेकर शहर तक बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कॉलेज से लेकर मदरसे तक बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि साहब आज हमारी जिंदगी में वो बातें नहीं है। नारे तकबीर, खड़े हो जाएं। पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत नबीर आला हजरत खानदान आला हजरत का एक अज़ीम उश्शान चश्मो चराग पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा व मौलाना तौसीफ रज़ा खान साहब की